الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 55 تک کل ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 56 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین، یہ کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں۔ قل ان سے کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قد ضللت، یقیناً میں گمراہ ہوں گا، اذن جبکہ میں ایسے معاملہ کروں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت پانے والوں میں شامل نہیں ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مجھے، آپ کو، سب لوگوں کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہہ دیں کہ میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی میں ان تمام چیزوں کی بندگی نہیں کروں گا، ان کو اپنا معبود نہیں مانوں گا جو اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بنایا جاتا ہے۔ کہو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، گویا یہ انسان کی خواہشات کی پیروی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس نے دوسرے بت بنا لیے ہیں جن کو وہ پوج رہا ہے۔ اگر میں ایسے کروں گا، قد ضللت اذن، اگر میں ایسے کروں گا تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا اور پھر میری ہدایت نہیں ہو سکے گی۔ تو گویا شرک کرنے سے منع کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر الہ بنانا ہے تو صرف ایک الہ واحد کو الہ بنانا ہے، الہ مان کے چلنا ہے۔ میرے لیے الہ کے کون ہوگا؟ صرف اور صرف الہ واحد اللہ سبحانہ تعالی۔ میرا معبود بھی وہی ہوگا، میرا مطلوب بھی وہی ہوگا، میرا مقصود بھی وہی ہوگا، اور میرا محبوب بھی وہی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالی۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی میرا معبود ہوگا، نہ مطلوب ہوگا، نہ مقصود ہوگا، اور نہ ہی محبوب ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالی کے سپرد مجھے اپنا آپ کر کے چلنا ہے، یعنی خالصتاً اللہ کی بندگی میں آنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ توحید۔ توحید واحد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اور واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک۔ تو عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جو ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں ہم اللہ کے واحد ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، عبودیت کا معاملہ نہیں کریں گے، اپنی عبادت میں اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسے بیان کیا ہے؟ قل، آپ انہیں کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر صفت میں بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے کسی سے، یعنی اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالی ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، اختیارات میں بھی یکتا ہے، اور عبادت میں بھی یکتا اور کامل ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ सुभाना ताला की वहदानियत का अकीदा इन चारों चीजों में आता है कि ज़ात में भी वो तौहीद का हम अकीदा रखेंगे, इबादत में भी तौहीद का रखेंगे। और इबादत में तौहीद कैसे है, कुरान ही बताता है। कुल, इनसे कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरा तमाम मरासिम अबूदियत और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना किसके लिए है, सिर्फ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ठीक है, तो गोया मेरी तमाम की तमाम इबादात और कुर्बानियां किसके लिए होंगी, मेरी जीना और मरना, जिंदगी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगा। ये है इबादात में तौहीद का अकीदा। इसके अलावा हदीस भी हमें बताती है ना कि वमन आता लिल्लाह व मना लिल्लाह व अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए रोका, अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ही के लिए नफरत की या बुग़्ज़ रखा, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया। तो गोया हमारी सारी की सारी चीजें किसके लिए होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इबादात के सारे तरीके, सारे मामलात, सारी चीजें किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होंगे, दुनिया से अपनी नामवरी के लिए नहीं होंगे, ना दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि नमाज अगर दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ी जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत में शिर्के असगर का डर है। शिर्के असगर क्या है, आपने फरमाया रिया शिर्क है। आपसे पूछा गया नमाज में रिया क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में रिया ये है कि तू अपनी नमाज महज इसलिए, नमाज में क़याम और सिजदा महज इसलिए लंबा कर दे कि कोई तुझे देख रहा है। तो ये क्या है, इबादत में, नमाज में शिर्क का मामला है। तो इसी तरह अगर ज़कात में शिर्क है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात में रिया, ज़कात में शिर्क है, और इबादत, रिया का सदका भी शिर्क है, रिया की नमाज भी शिर्क है, रिया का रोजा भी शिर्क है। गोया हर इबादत जो रिया के लिए की जाए, दूसरे को दिखाने के लिए की जाए, या इसलिए की जाए कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे नेक कहें, ये भी क्या है, ये भी शिर्क के जिम्रे में आने वाली है। गोया वो इबादत मैंने अल्लाह के लिए तो की ही नहीं, वो तो मैंने दूसरे को दिखाने के लिए की थी। तो जब हमने इबादत करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है, और खालिसतन अल्लाह के लिए करनी है, अल्लाह को राजी करने के लिए करनी है, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए करनी है। ठीक है, तो गोया नमूदो नुमाइश के लिए नहीं होगी, अल्लाह को राजी करने के लिए होगी, और नमूदो अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए की जाएगी। ठीक है, किसी बरादरी या किसी दोस्तों के खुश करने के लिए या किसी दोस्तों की नाराजगी से बचने के लिए मामलात नहीं होंगे, इबादात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए जब इबादात की जाएंगी तो फिर वो है इबादात में तौहीद का तरीका। फिर अगर हम देखें तो अल्लाह ताला अपनी सिफात में भी यकता है और अपने इख्तियारात में भी यकता है। ठीक है, अल्लाह के जैसा ना सिफात किसी में है, ना इख्तियारात कोई रखता है। मिसाल के तौर पर अल अलीम कौन है, अल्लाह। सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है, अल्लाह के पास। आलिमुल गैब कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। समीर कौन है, अस्समीर कौन है, सुनने वाला जो हर एक की पुकार को सुनता है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला है। हिदायत देने वाला कौन है, वो सिर्फ अल्लाह, हादी अल्लाह है। हय्यु कय्यूम कौन है, अल्लाह, जो जिंदा भी है, जो कायम भी रहने वाला है। अव्वल कौन था, अल्लाह है। आखिर कौन है, अल्लाह होगा। जाहिर में कौन है, अल्लाह है। बातिन में कौन है, अल्लाह है। वल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज का जानने वाला है, वो अल्लाह है। देखने वाला कौन है, अल बसीर कौन है, अल्लाह सुब्हाना ताला है। निगाहें उसको नहीं पा सकती, लेकिन वो निगाहों को पा लेता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में, तो वो इतना अल बसीर है, इतना अल खबीर है। अल वदूद अल्लाह है, अल खबीर अल्लाह है। कोई हर सिफत किसके लिए है, अल्लाह के लिए मखसूस है, और कोई भी ये सिफत नहीं रख सकता
किसी दुनिया के इंसान को हमारा इल्म नहीं हो सकता कि हमारे दिल में क्या है, ठीक है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर भी अल्लाह है। राज़िक कौन है? रिस्क लेने के लिए हम दूसरों के दरबारों पे जाते हैं, अपने बॉस के पास जाते हैं, अपने बॉस को खुश करते हैं, पेटियां की पेटियां उसको पहुंचाते हैं, तो क्या हम उसको राज़िक बनाते हैं? राज़िक कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला। रिस्क की कुंजियां उसके पास हैं, रिस्क के सारे वसाइल जरियाए उसके पास है। तो गोया ये तमाम की तमाम सिफात किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, और ना सिर्फ उसके पास है बल्कि मुबालगे की हद तक उसके पास है, ठीक है। कोई हमें कर तो सकता है, इसको हमारी बात सुन रहे हैं, आप भी सुन रही हैं मेरी बात, लेकिन जो अस्समीर, जो इंसान के दिलों के राज भी जानता है और दिल में उठने वाले ख्यालात को भी सुन रहा है, सरगोशियां भी सुन रहा है, वो कौन है? वो सिर्फ अस्समी अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो गोया अल्लाह सुब्हाना ताला कि ये सारी की सारी सिफात जो हैं वो हमें अल्लाह कैसे माननी है? तौहीद के अकीदे के हवाले से कि ये सिफात अल्लाह की हैं। एक तो ये कि वो मुबालगे की हद तक उसके पास है। दूसरी बात ये कि वो इन सिफात में किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी सिफात किसी से लेता या सीखता नहीं है, बल्कि वो दूसरों को सिखाता और दूसरों को वो क्वालिटीज अता करता है, ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी तमाम के तमाम इख्तियारात में भी यकता है, सही। ये सारे के सारे अल्लाह को इन तमाम की तमाम सिफात के साथ मानना असल में अकीदा तौहीद का सही अंदाज और सही तरीका है। वो कुछ एक शेर आते हैं बहुत खूबसूरत, इसका बंद आता है कि है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, जबान और दिल की शहादत के लायक, इसी के हैं फरमान अतात के लायक, इसी के हैं सरकार खिदमत के लायक, लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। तो गोया एक अल्लाह के आगे अगर हम अपना सर झुका देंगे तो तमाम की तमाम दूसरी अतातों पर हम ला की तलवार चला देंगे, और वो ही बात के जो एक सजदा गिरा खटकता है तुझको, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक अल्लाह के आगे झुक जाएंगे तो तमाम के तमाम दूसरी अतातों से निजात खुद मिल जाएगी। इबादात में, इख्तियारात में, सिफात में, और फिर अल्लाह ताला से उसकी ज़ात में तौहीद को जब हम अपने अंदर रासिख कर लेते हैं तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि एक अल्लाह को राजी करना आसान है और बहुत सारों को राजी करना बहुत मुश्किल है। एक अल्लाह की नाराजगी से बचना आसान है, बाकी सारी दुनिया की नाराजगी से बचना बहुत मुश्किल है। एक को राजी करते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को राजी करेंगे, तीसरा नाराज हो जाएगा। तो गोया एक की अतात पर आ जाएंगे तो बाकी सब के सब खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। अल्लाह राजी तो सब राजी, और जो अल्लाह रूठ गया तो फिर सब कुछ ही रूठ जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि अगर अल्लाह को राजी कर दोगे, मफहूम है हदीस कुदसी का कि अगर अल्लाह को राजी कर दोगे तो दुनिया अगर नाराज भी हो जाएगी तो अल्लाह उन नाराज दुनिया को भी तुमसे राजी कर देगा। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह का इख्तियार, ये है अल्लाह का कामिल इख्तियार कि अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए अगर इंसान कुछ कर लेगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला उन नाराज लोगों को भी हमसे राजी कर देगा। तो बहुत सी अतातों के तौक इंसान के दिल अंदर गर्दन से भी उतर जाते हैं और उसके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी जगह अगर हम देखें तो एक तो है तौहीद का अकीदा, और दूसरी जगह जब ये अकीदा रासिख होता है तो हम क्या करते हैं? शिर्क की टोटल नफी करते हैं, ठीक है। एक तरफ तौहीद का अकीदा रासिख होता है तो शिर्क की टोटल नफी की जाती है। तो फिर शिर्क क्या होता है जिसकी नफी करेंगे तो हम तौहीद के अकीदे पर रासिख हो जाएंगे। शिर्क का रूट वर्ड लिखिए शीन रा का, शरका। शरका मिलाना, शरीक करना, ठीक है। किसी चीज को किसी चीज में शामिल कर देना, शरीक कर देना। तो अगर अल्लाह की वहदानियत में हम किसी भी चीज को शरीक कर देंगे,
शामिल कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? शिर्क कहेंगे। ठीक है, जैसे तौहीद के अकीदे में 4 चीजें थी कि जात में तौहीद, इबादात में तौहीद, सिफात में तौहीद और इख्तियारात में तौहीद, इसी तरह से शिर्क भी इन 4 चीजों में आता है। ठीक है, शिर्क भी इन 4 मामलात में ही होता है। अल्लाह की जात में किसी को शरीक कर दिया जाए। जात में शरीक कैसा है कि अल्लाह का बेटा बना दिया, इब्नुल्लाह बना दिया। अल्लाह के लेवल पर किसी को लेकर आ जाएं, अल्लाह ने ये हुक्म दिया, मेरा मियाँ मुझे ये हुक्म देता है। अल्लाह के मुकाबले में किसी को लाके खड़ा कर दिया जाए और अल्लाह की ना मानी जाए और दूसरे की मान ली जाए, वो क्या है? अल्लाह की जात में शिर्क करने का मामला करना है। समझ आ गई? जो अल्लाह ने, यानी कि आपने अल्लाह की बात को नीचे कर दिया और दूसरे की बात को ऊपर कर दिया। ये क्या है? आपने अल्लाह के मुकाबले में किसी को ला कर शरीक बना दिया। तो अगर मैं अपने मियाँ की नाजायज बात को मान लूं, वो बात जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया, तो गोया मैंने अपने मियाँ को अपने अल्लाह के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया और मैंने अपने मियाँ को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से सुपीरियर कर दिया, अगर मैंने अपने मियाँ की गलत बात भी मान ली। समझ आ गई? तो ये है अल्लाह की जात में शिर्क का तसव्वुर। अल्लाह की जात में कैसे कैसे शिर्क होता है। दुनिया में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को माना जाता है और लिविंग ऑब्जेक्ट्स को माना जाता है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को अगर हम देखें तो शिर्क कैसे है। नॉन लिविंग बुत है, पत्थरों को माना जाता है, सूरज को माना जाता है, चांद को देवता माना जाता है, फिर मूर्तियां बनाई जाती हैं, फिर दरख्तों को पूजा जाता है, फिर इसके अलावा फरिश्तों को देवी देवता बनाया जाता है, फिर इसके अलावा जानवरों को जैसे सांप को, गौ माता को पूजा जाता है। ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और लिविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल लाने का मामला और तरीका है जो दुनिया में शिर्क के हवाले से जायज है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज, चांद, सितारे, जानवर, फरिश्ते, अंबिया को इब्नुल्लाह बना दिया जाता है और 3 खुदाओं का अकीदा जैसे अकीदा तस्लीस हमने पढ़ा, ये सब भी क्या है? ये शिर्क फी जात के जुमरे में आने वाले आमाल हैं। शिर्क फी जात, अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ला के किसी को भी शरीक कर दिया जाए, उसके बराबर बना दिया जाए। याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह बेशक नहीं बख्शता, अन युशरका बिही, के उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, व यगफिरु मा दूना ज़ालिक, और वो बाकी जितने भी इसके अलावा गुनाह होंगे वो उनको माफ कर देगा। ज़ालिका लिमन यशाउ, ये जिसके लिए वो चाहेगा, वमन युशरिक बिल्लाही फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, और जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। अल्लाह ने गोया शिर्क की बख्शिश नहीं करनी, बाकी सारी चीजों की इंसान अल्लाह ताला इंसान को गुनाहों को बख्श देगा। तो ये तो मैंने आपको जात में शिर्क के हवाले से बताया। अब अल्लाह से इबादात में शिर्क कैसे किया जाता है? इबादात में शिर्क कैसे किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था ना हदीस अभी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शिर्क असगर का डर है। फिर आपने फरमाया दिखावे की नमाज शिर्क है, दिखावे का सदका शिर्क है। तो गोया हर वो अमल जो दूसरे को खुश करने, दूसरे को राजी करने के लिए किया जा रहा होता है और जिससे ये मकसूद नहीं होता कि मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा, तो ये सब क्या है? दुनिया समेटने के चक्कर और अपनी नामवरी के डंके बजाने के लिए जो नेकी के अमाल किए जाएंगे वो सब के सब शिर्क के जिम्रे में आ जाएंगे। ठीक है, शिर्क अकबर क्या था? जब सिजदे का या माल का खर्च या इबादत अल्लाह के सिवा किसी और के साथ किया जाए तो वो भी क्या है? शिर्क अकबर के जिम्रे में आता है। सिजदा किया जाए या माल खर्च किया जाए या कोई भी इबादत किए जाए तो ये शिर्क असगर के अकबर के जिम्रे में आ जाता है, यानी अल्लाह की इबादत के साथ शिर्क है।
क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या हुक्म दिया था, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अल्लाह की मोहब्बत में माल देना है अपने क़राबतदारों में। फिर हमने पढ़ा था अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रे का जब भी कसरत करो तो किसके लिए करना, अल्लाह के लिए करना, हर चीज अल्लाह के लिए हो, माल भी खर्च अल्लाह के लिए, इबादत भी अल्लाह के लिए। और फिर हमने पढ़ा था कि हुर्रिमत अलैकुम, के हराम कर दिए तुम्हारे लिए, उसमें क्या हमने पढ़ा था, वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, कि वो जो आस्थानों पर ज़िबा किया जाता है, तो आस्थानों पर जो ज़िबा किया जाता है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, जो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किया जाए, आस्थानों पे चढ़ावे चढ़ाए जाएं, नजरें न्याज़ें बांटी जाएं, ये सब भी क्या आ जाएगा, शिर्क के जिम्रे में आने वाली बातें हैं। तो गोया अल्लाह के नाम के अलावा कुर्बानी देना, इबादत करना, माल खर्च करना, हज उम्रे करना, देगें चढ़ाना, नजरे न्याज़े तकसीम करना, खाने बांटना, ये इसके पीछे गर्ज़ो गायत अल्लाह को राजी करना नहीं बल्कि किसी और को राजी करना है मकसूद है, तो ये सब भी शिर्क के जिम्रे में आने वाले आमाल हैं, ठीक है। चाहे किसी नेकूकार औलिया अल्लाह के नाम के लिए किए जाएं, चाहे किसी नबी के नाम के किए जाएं, चाहे सहाबाए कराम के नाम के किए जाएं, सहाबियात के नाम के किए जाएं, वो सब भी गैर अल्लाह के नाम में आने वाले मामलात हैं और ये सब शिर्क ही के जिम्रे में आने वाले जो है वो आमाल हैं। समझ गए आप? तो क्या है, इबादात में शिर्क का तरीका हमने समझ लिया, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरा जीना मरना, यानी सारे अमाल किसके लिए होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अगर मैं जिहाद पे भी चली गई और मैं कताल में जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गई, लेकिन मेरी गर्ज़ो गायत ये थी कि लोग मुझे बहुत बहादुर कहेंगे, तो मेरा मरना भी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अगर नहीं है, दुनिया से नामवरी हासिल करना है, तो वो भी शिर्क के जिम्रे में आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो वो दुनिया के लिए किया था, अल्लाह के लिए तो किया ही नहीं था। तो गोया मरना भी किसके लिए, अल्लाह के लिए, जीना भी किसके लिए, अल्लाह के लिए, सारी के सारी ये मामलात किसके लिए आ रहे हैं, शिर्क फिल इबादात के जिम्रे में आने वाले मामलात और आमाल हैं। अब शिर्क फिल सिफात और शिर्क फिल इख्तियारात, अगर हम ये समझें कि अल मुइज़ अल्लाह है, सही, हम जानते हैं कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, इख्तियार इज्जत का अल्लाह के हाथ में है, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि इज्जत भी मेरे इख्तियार में और जिल्लत देना भी मेरे इख्तियार में, हर चीज अल्लाह ही के इख्तियार में है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है, जिसको चाहता है इज्जतें अता फरमाता है। अब अगर हम अपनी दुनियावी इज्जत दुनिया के किसी हुक्मरान या बॉस या सास या किसी भी कंपनी में काम करते हुए या किसी भी इदारे में हम काम करते हुए हम ये समझें कि अगर मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या मेरा सीईओ या मेरा जो हेड है या जो मेरा बॉस है, वो मुझे, मैं उसको खुश करूंगा तो वो मुझे इज्जत देगा और मुझे मर्तबा देगा और मुझे अच्छी पोस्ट पे रखेगा, तो मैं अपना अकीदा अल्लाह की जात से कि वो अल मुइज़ है, मैं किस पर लेकर जा रही हूँ, अपने बॉस के ऊपर। आ रही बात समझ आपको? मेरा अकीदा अल मुइज़ अल्लाह से हटकर इज्जत कहाँ से हासिल करने का बन रहा है, अपने बॉस से, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, और उसको मैं इसलिए खुश कर रही हूँ कि वो मुझे मेरी इज्जतें अता फरमा देगा, मुझे दर्जात की बुलंदियां, मुझे अपग्रेड कर देगा, मुझे फलां जगह पे पोस्टिंग दे देगा। तो ये क्या हो रहा है, ये शिर्क का मामला हो रहा है। अल्लाह के लेवल को हम किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अल्लाह से हटाकर दूसरे को अल्लाह के मुकाबले मिला के अल मुइज़ अल्लाह से हटा के किसके हमारे ऊपर हमारा बिलीव आ रहा है, किसके ऊपर हमारा भरोसा आ रहा है, अपने बॉस के ऊपर। ये भी शिर्क ही की एक किस्म है, ठीक है। इसी तरह से राज़िक अल्लाह है, रिस्क वो देता है, लेकिन मैं अगर
یہ سوچوں کہ اگر میں سچ بول دوں گی تو میرا تو باس ناراض ہو جائے گا اور میری تو سیلری کٹ جائے گی اور میرے تو جی اس سے مجھے دنیا کا اتنا نقصان ہو جائے گا یہ سچ بولنے کی وجہ سے، تو میری تو میں کھاؤں گی کیسے، مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ تو رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں اگر صرف اور صرف اس بنا پر سچ نہیں بولوں کہ جی مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا اور میں رازق اپنے باس کو سمجھ لوں، تو وہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہیں باتیں بہت چھوٹی چھوٹی، لیکن ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو ہم دیکھتے جائیں گے کس طرح شرک ہمارے اندر آتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ شرک سے بچو، کیونکہ شرک انسان کے اندر ایسے آہستگی سے آتا ہے جیسے کالی سیاہ رات میں کالی سیاہ پتھر کے اوپر کالی سیاہ چونٹی چل رہی ہوتی ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور شرک کر جاتا ہے۔ تو گویا شرک کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا بھروسہ رزق کا IMF کے اوپر ڈال دیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر ہم نے UN کی فلاں بات نہیں مانی یا امریکہ کی فلاں پالیسی اختیار نہیں کی اور ہم نے نہیں اس کو خوش کیا تو وہ تو ہماری فنڈنگ روک دیں گے، تو گویا نعوذ باللہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتے ہوئے ہم نے رازق IMF کو سمجھ لیا اور ان کو سمجھ لیا سپر پاورز کو جو ہمیں فنڈنگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ حکمرانی لیول پر، یہ قومی سطح کے لیول پر شرک کا معاملہ اور شرک کا رویہ ہے، اگر کسی قوم کے ساتھ منسلک کر دیا جائے یا کسی حکمران کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ اسی طرح خالق بھی اللہ ہے، تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ انسان کے رحم مادر میں وہ نطفے کو ڈال کے اور پھر اس کے اندر اس کو بچے کو پروان چڑھاتا ہے، اور احسن الخالقین المصور رب بہت خوبصورت ہی تخلیق انسان کو معرض وجود میں لے کر آتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اگر اللہ خالق کے جاننے کے باوجود ہم اولاد کے حصول کی حاجت روائی کے لیے درباروں پر جائیں اور جا کر وہاں پر ہم ان سے حاجت روائیوں کی باتیں کریں اور ہم یہ کہیں کہ فلاں جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ کرتے ہیں دعا، تو اس جگہ کی برکت کی بدولت جو ہے ان کی سفارش سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، یا یہ کہ ان کے کہنے کے اوپر کہ جی فلاں جگہ پر اگر ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور اللہ ہمیں بیٹا دے دے تو پھر اس بیٹے کو ہم نے چڑھاوے چڑھانے اور وہاں پر بیٹے کو چڑھا کے آ جائیں، نظریں نیازیں اور بیٹے ہی چڑھا کے آ جائیں، تو یہ سب کیا معاملات ہیں؟ یہ بھی سب شرک کے معاملات ہیں۔ ان سب سے کو جان کر ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کو سننے والا رب صرف اللہ ہے اور کوئی دعائیں نہیں سن سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ قبروں میں بہیں اور وہ شہید تھے اور وہ ہماری دعائیں سن رہے ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں ہمیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اگر اللہ سمیع و مجیب رب کے علاوہ کسی اور کے اوپر یہ کانسیپٹ رکھا جائے کہ وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہماری دعائیں آگے پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر ایک کی پکار سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی کی پکار نہیں سن سکتا اور نہ ہی اس کی پکار کا جواب دے سکتا ہے۔ جیسے داتا دربار جا کے لوگ یہی کانسیپٹ رکھتے ہیں نا کہ وہ داتا صاحب ہیں، داتا گنج بخش ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کو داتا ماننے کے بجائے داتا ہم کسی اور کو کہہ دیں، داتا کا مطلب دینے والا، گنج بخش کا مطلب ہے خزانے بخشنے والا، گنج خزانے کو کہتے ہیں، خزانے بخشنے والا۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، غوث اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا مددگار۔ کون ہے پھر سب سے بڑا مددگار؟ اللہ۔ اگر اللہ کے بجائے غوث اعظم ہم کسی اور کو کہہ دیں، انسان کو کہہ دیں، جی جیسے عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ شرک۔ آگے بات سمجھ؟ تو یہ اتنی بڑی بڑی حقیقت ہے۔ قدسیہ آپ کو بلا رہے جی، تو یہ سب
जब अल्लाह की सिफात और अल्लाह के इख्तियारात में शिर्क का अंदाज और रवैया है और हमारे माशरे के अंदर इंतहा से ज्यादा प्रिवेल कर रहा है और हर जगह नजर आता है, लेकिन कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वो शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह ये बातें हमें समझने की और हमें इस पर कायम होने की और रासिखुल ईमान होने की और फिर आगे इसको बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत मोहतात होने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं जाने की जरूरत। हाँ जी, हम तो इनसे मांगते तो हम अल्लाह से ही हैं। हम सब पढ़ेंगे इसके अंदर कि वो क्या कहते हैं। अल्लाह ने वो सारी बातें हमें कुरान के अंदर बता दी हैं कि वो क्या कहते हैं, हम क्यों वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये करना है कि हम यहाँ पर अच्छी तरह हमने समझ लिया कि तौहीद का अकीदा क्या है और शिर्क का अकीदा क्या है। जहाँ तौहीद है वहीं शिर्क उसको हम जब हटाएंगे तो तौहीद के अकीदे पर रासिख होना शुरू होंगे। अल्लाह हमें तौहीद के अकीदे पर रासिख होने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत के अंदर अल्लाह ने कह दिया है कि मैं उनसे कह दो कि मैं तुम अल्लाह के अलावा जिन दूसरों को पुकारते हो मुझे उनकी बंदगी करने से मना किया है। कहो मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूंगा, अगर मैंने ऐसा किया तो गुमराह हो गया और राह रास्त पाने वालों में से ना रहा। कुल इनसे कह दीजिए इन्नी आला बैयनतिम मिर रब्बी, मैं अपने रब की तरफ से एक दलील रोशन पर कायम हूँ। वकज़्ज़बतुम बिही, और तुमने उसे झुटला दिया है। अल्लाह ने ये दलील रोशन आज मुझे आपको सबको अता फरमा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस दलील रोशन को थाम लीजिए, पकड़ लीजिए और कह दीजिए मैं तो इस दलील रोशन पर कायम हूँ, तुमने इसे झुटला दिया है। मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, अब मेरे इख्तियार में वो चीज नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायरा कार बताया गया, उनका इख्तियार बताया गया कि उनके इख्तियार में भी नहीं था कि क़यामत को जल्दी लेकर आ जाते। नबी के इख्तियार में भी नहीं है कि किसी के कहने पर वो कोई अमल खुद से खुद करके दे दे। जब नबी नहीं कर सकते तो फिर एक इंसान कैसे कर सकता है। नाउजुबिल्लाह, ये जो दरबारों पे जाना, ये पीरों से बातें करके और उनसे अपनी बातें मनवाना और हाजत रवाइयों के मामलात करना उनके इख्तियार में कैसे हो सकता था। जब अल्लाह ने कहा कि कह दो मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, मेरे लिए नहीं है वो बातें कि मैं वो कर सकूं जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बल्कि फैसला का सारा इख्तियार अल्लाह को है। यानी अल्लाह ही फैसले कर सकता है किसकी दुआ को पूरा करना है, किसको बेटा देना है, किसको रिस्क देना है नहीं देना, ये अल्लाह के काम है, अल्लाह के इख्तियार में। ये तो नबी भी अपना इख्तियार नहीं रखते तो वो जो दरबारों पे जो मदफून है वो कैसे कोई मामला कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे समझा रहे हैं यक़ुस्सुल हक़्क़ा, वही अल्लाह ताला अमरे हक बयान करता है। वहुवा खैरुल फासिलीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। यानी अल्लाह ताला फैसला करता है। जब उसने फैसला करना होता है, असल में वो क्यों फैसला नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो मोहलत अमल देता रहता है। अल्लाह रहीम है। पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत का शेवा लाजिम कर लिया है। अल्लाह रहमत से की वजह से ढील देता रहता है फैसला करने में, यानी मौत का फैसला करने में या उसकी मौत की घड़ी को लाने में या अजाब को लाने में अल्लाह जल्दी नहीं करता, वो ढील देता रहता है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही, अगर वो चीज मेरे इख्तियार में होती भी जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो, लाकुज़ियल अमरु बैनी व बैनकुम, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता। यानी अल्लाह अपने फैसलों में जल्दी नहीं करता। अगर मेरे बस में होता भी तो फिर कब का फैसला हो चुका होता। वल्लाहु आलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को जानता है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत बनाई है कि इंसान जो है ना वो जल्दबाज है। कुरान में आता है इन्नल इंसाना काना अजूला, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ। अल्लाह ने इंसान को कैसा बनाया है? अजूला, उजलत पसंद, उजलत बाज, जल्दबाज बनाया है, और बेसब्रा, हलुआ बेसब्रा बनाया है। इसी जल्दबाजी और बेसब्री की वजह से वो कहता है बस अभी हो जाए, बस अभी हो जाए। तो अल्लाह ने कहा कि अगर इनसे कहो कि अगर फैसले अल्लाह ताला करना शुरू करता तो फिर तुम्हें से किसी को भी ना छोड़ता, क्योंकि अल्लाह जालिमों में से एक एक को जानता है। जो जुल्म कर रहा है, जो जुल्म की
गंदगी से अपने आप को आलूदा कर चुका है, अल्लाह उस सारे लोगों को जानता है जो शिर्क के मामलात करके बुतों को पूज रहे हैं या अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हुआ, और उसी के पास सारे के सारे गैब की कुंजियां हैं। मफातिहुल गैब कहते हैं गैब की कुंजियों को, अल्लाह ही के पास सारी गैब की कुंजियां हैं। ला यअलमुहा इल्ला हुआ, जिसको उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये गैब की कौन सी कुंजियां हैं जो अल्लाह ने फरमाया कि ये उसी अल्लाह ही के पास है? गैब की 5 कुंजियां हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अल्लाह ने वो गैब की 5 कुंजियां बताई हैं। 5 कुंजियां अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। कौन सी हैं? एक तो ये है कि मौत कब और कहाँ आएगी, कोई रिस्क कितना और कहाँ से पाएगा, माँ के पेटों में क्या चीज परवरिश पा रही है, बारिश कब होगी और कल क्या होगा। ये 5 गैब की कुंजियां हैं, कुरान में भी आती हैं, हदीस से भी पता चलती हैं। अल्लाह ने इसका इल्म इसके अलावा अपने अलावा किसी और को नहीं दिया कि क़यामत कब आएगी, यानी मौत कब आएगी या क़यामत कब आएगी। ठीक है, अल्लाह ने ये अपने पास रखा है। मौत कब और कहाँ आएगी, क़यामत कब आएगी, उसी में मौत है, और कोई रिस्क कब और कहाँ से कितना पाएगा, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब होगी और कल क्या होगा। अल्लाह के अलावा इसका इल्म और किसी को नहीं है। वो यालमु मा फिल बर्री वल बहर, और वो जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ समंदर में है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, और कोई पत्ता जो गिरता है मगर उसके इल्म में होता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी, और दाना जो जमीन के अंधेरों में जाता है वो भी उसके इल्म में होता है। वला रत्बिन वला याबिस, और ना ही खुश्की वाला और ना ही तरी वाला, यानी अल्लाह के इल्म में है जो उसके बाखबर है। इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर वो सब कुछ एक लौहे महफूज में लिखा हुआ है, एक बय्यन किताब में लिखा हुआ है। गोया ये यकीनी बात है, इसमें कोई इब्हाम की बात नहीं है। ये सारी बातें अल्लाह के इल्म में है। जो खुश्की में है, जो तरी में है, यानी समंदर में है, कोई जमीन पे गिरने वाला पत्ता उसकी निगाहों से ओझल नहीं है, जमीन के अंदर जाने वाला दाना उसकी निगाहों से ओझल नहीं है, गीला हो या खुश्क हो, उसकी इल्म में हर चीज है। गोया अल्लाह ने बता दिया गैब की कुंजियां भी मेरे पास हैं और सारी दुनिया के मामलात भी मेरे सामने हो रहे हैं, मेरी निगाहों के सामने हैं। जब हर चीज अल्लाह के निगाहों के सामने है, हर चीज आने वाली और पिछले गैब के मामलात भी अल्लाह ही को मालूम है। ये एक ऐसा अकीदा है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को सूट करता है। अल्लाह ही को कह लीजिए कि अल्लाह ही कामिल इसके हवाले से इख्तियार रखने वाला है कि आलिमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। ये आयत अल्लाह के पूरे इल्म और कुदरत का अहाता कर रही है। इससे बाद अगली आयत, वहुवल्लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैली, और वही है जो तुम्हें रात के वक्त क्या करता है, फौत कर देता है, यानी नींद के वक्त तुम्हारी रूहों को ले जाता है। फौत करना, नींद मौत की बहन है, हदीस में आता है। तो नींद की हालत में असल में क्या होता है, रूह को कब्ज कर लिया जाता है। इंसान की रूह के 2 हिस्से होते हैं, जिनमें से एक हिस्सा नींद की हालत में कब्ज कर लिया जाता है। और फिर अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह फरमाता है वयअलमु मा जरहतुम बिन नहारी, और वो जानता है जो दिन के वक्त तुम चलते फिरते हो, यानी तुम्हारे दिन के वक्त उस तुम्हारे दुनिया भर के जो मामलात होते हैं, कारोबार होते हैं, उन सब को भी वो जानता है। सुम्मा यबअसुकुम फीही, फिर वो उस जो कब्ज की हुई रूह होती है उसको तुम्हारे लिए दोबारा भेज देता है दुनिया में। लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, ताकि पूरी की जाए जो मिकदार है जो तुम्हारी दुनिया में रहने का
मुद्दत है उसको पूरा कर दिया जाए। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर वो बता देगा तुमको बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। यानी दूसरी चीज जो अल्लाह ने अपनी कुदरत और इख्तियार की ये बताई है कि रात के वक्त नींद की हालत में वो तुम्हारी मौत का मामला करता है, तुम्हारी रूहों को कब्ज करता है, और दिन के वक्त वो इसी रूह को पलटाता है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी दिन भर के मामलात को वो देख रहा होता है। एक वक्त मुकर्रर तक के लिए तुम्हें इस दुनिया में उसने भेजा है, और उस अजल मुसम्मा को हर शख्स ने पूरा करना है। जिसकी जितनी जिंदगी अल्लाह ने दुनिया में लिखी है वो उतनी जिंदगी गुजारेगा, और फिर अल्लाह ताला उसको क्या करेगा, सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, उसी की तरफ तुमको पलट कर जाना है, फिर वो बताएगा तुमको कि तुम क्या अमल करते रहे हो। ये दो आयात जो हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की कामिल कुदरत और इल्म का अहाता कर रही हैं और बता रही हैं। इंसान को अगर अल्लाह की इन दोनों सिफात का कामिल यकीन हो जाए कि आलिमुल गैब अल्लाह है, हर चीज उसकी निगाहों में है, वो चाहता है तो हमें मौत की हालत में रात को भेज देता है, और अगले दिन फिर वो उठा के भेजता है हमें जिंदगी के अंदर, इसका पूरे क्या कहते हैं, जिंदगी के जो कारखाना है जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला हमें भेजता है, और फिर हमारे आमाल को देख रहा होता है, उसकी निगाहों में है। जब ये दोनों अकीदे इंसान के अंदर रासिख हो जाते हैं तो कामिल अल्लाह ताला की सिफात ऐसी आती हैं कि वो इस्तेजार की कैफियत उसके ऊपर तारी होती है कि मेरा रब मुझे हर वक्त देख रहा है, वो जिस टाइम एनी टाइम वो चाहेगा मुझे दुनिया से उठा के ले जाएगा, अभी भी मैं अल्लाह की निगाहों में हूं, तो फिर उससे गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। ठीक है, आलिमुल गैब जात भी उसकी है, कुदरत उसके पास है, इल्म का अहाता उसका कोई नहीं कर सकता। जब चाहता है, जैसे चाहता है, जो चाहता है, जहां चाहता है इंसान को ले जाता है, भेज देता है, जब चाहेगा इस दुनिया से ले जाएगा, हर चीज उसकी निगाहों में है। तो ये इस्तेहजार की कैफियत जब इंसान के अंदर आ जाए तो गुनाहों से बचना उसके लिए आसान हो जाता है। तो ये दो आयात जो हैं वो बेसिकली हमारी इखलाक और अमाल को दुरुस्त करने के लिए एक अक्सीर किसी हैसियत रखती हैं। आयत नंबर 59 और आयत नंबर 60, अल्लाह ने कहा गैब के खजानों को अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता, यानी गैब की जितनी बातें हैं वो अल्लाह ताला को मालूम है। अब हम देखें तो अल्लाह ने ये 5 गैब की चीजें हमें बताई, तो हम तो देखते हैं कि आज तो महकमा मौसमियात वाले बता देते हैं कि बारिश कब होगी और कितनी बरसेगी और कहाँ बरसेगी, और मेडिकल साइंस भी हमें अल्ट्रासाउंड से बता देते हैं, 3D आज 4D अल्ट्रासाउंड आ गए हैं कि जी माओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है और हमें मालूम हो जाता है। तो फिर कुरान की ये आयत जो है वो कैसे बताती है कि अल्लाह ही के पास गैब की कुंजियां हैं और कोई इसको नहीं जानता। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक चीज होती है कि वो इल्म जो अल्लाह ताला इंसान को देना चाहता है वो अल्लाह ताला बता देता है। ठीक है, जो इल्म अल्लाह इंसान को देना चाहता है उस चीज के बारे में अल्लाह ताला खुद ही बता देता है, और जिस चीज को अल्लाह मख्फी रखना चाहता है उसका इजहार नहीं करता। तो कई दफा क्या होता है, इनकी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत साबित हो जाती हैं। कई दफा अल्ट्रासाउंड पर देखने के बावजूद भी वो बच्चा उस तरह पैदा नहीं होता जिस तरह से उसका नजर आ रहा होता है या डॉक्टर्स ने बताया होता है। वो कैसे होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उस चीज को मख्फी रखना चाहता था, उसको जाहिर नहीं करना चाहता था, उसको वो गैब में रखना चाहता था। जिस चीज का इल्म अल्लाह ने दे दिया इसका मतलब है वो गैब उसने नहीं रखना था। समझ आ गई? वो अल्लाह ने ज़हूर में लाना था, वो गैब की बात नहीं थी, वो अंबाउल गैब में शामिल हो जाता है। गैब की खबर होती है जो अल्लाह दे देता है। समझ गए आप बात? यानी अल्लाह ने जिस चीज की खबर देनी थी उसकी दे देता है और वो अंबाउल गैब बन जाते हैं, यानी गैब की खबर वो अल्लाह दे देता है, और जिस चीज को वो मख्फी रखना चाहता है उसको मख्फी ही रखता है, उसकी वो खबर भी इंसान को नहीं देता। सही? तो सिंपल वर्ड्स में अच्छी तरह से समझ लीजिए कि
वो फिर गैब का इल्म नहीं रहता, वो फिर गैब का इल्म नहीं रखता। और वैसे भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स शामिल होते हैं। नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं है। देखिए, असबाब का मादा पैदा होकर जाहिर हो जाता है, असबाब का मादा पैदा होकर जाहिर हो जाता है, और फर्क सिर्फ ये है कि आम बंदा इनसे बेखबर होता है। जब मादा कवी होता है तो ज़हूर आम हो जाता है। ठीक है, असबाब का मादा पैदा हो जाता है, यानी कि महकमा मौसमियात वाले ये तो बता सकते हैं, अगर असबाब का मादा अल्लाह पैदा कर दे कि जी यहाँ पे बादल आ रहे हैं और हवाएं इस तरह चल रही हैं, तो हो सकता है कि ये हवाएं बादलों को यहाँ पर ले जाएं। असबाब का मादा पैदा हो गया, उसके ज़हूर की खबर जब मादा कवी होगा तो वो हमें बता देंगे अगले 24 आवर्स में क्या हो सकता है। समझ आई? गोया मादा पैदा करने के बाद असबाब कवी होते हैं और फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सही, आम बंदे की नजर निगाहों से वो ओझल होता है। ठीक है, समझ गई कि नहीं समझे? अल्लाह ने उस असबाब के मादे को पैदा करके अगर उसमें कवी नहीं किया या उसके ज़हूर को नहीं लाना चाहता तो लोगों की निगाहों से उसको ओझल कर देता है। ये चीज होने के बावजूद भी इंस्ट्रूमेंट तो होते हैं ना उसमें, तो अल्लाह, और इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें नहीं बता सकते। अब हवाएं इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें फिर नहीं बता सकते। फिर वो अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह ने वो जो चीज हमें बतानी है वो तो बतानी है। प्रिडिक्ट कर देते हैं उन असबाब को देखकर, उन मादों को देखकर कि जी ये ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसे हो जाए। इल्मे नजूम भी उसी में आता है। समझ में आ गई? ये अब अल्लाह की मर्जी है कि वो जो सैयारा है या ये जो सितारा है जिससे वो नजूमी हिसाब लगाते हैं, अल्लाह की मर्जी हो, अल्लाह का हुक्म हो कि तुमने अब यहाँ से हट जाना है, तो किसी को क्या पता कि कल वो सितारा वहां से हट जाएगा। समझ आ गई? तो बस बात यह है कि जो चीजें अल्लाह चाहता है वो बता देता है, जो नहीं चाहता वो नहीं बताता। जब वो बता देता है तो फिर वो गैब नहीं रहता। सिंपल वर्ड्स में जो समझना है वो ये समझ लीजिए कि फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जब जाहिर कर देता है तो फिर वो गैब नहीं रहता। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर कि देखिए दो चीजें गैब के हवाले से हमारी समझने की जरूरत थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब अल्लाह फरमाते हैं आगे कि वहुवल काहिरु फौका इबादिही, वो अपने बंदे पर कामिल और मुकम्मल इख्तियार रखता है। पीछे भी हम ये आयत पढ़कर आए थे, आयत का हिस्सा, कि वो अपने बंदे पर कामिल मुकम्मल इख्तियार रखता है। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। यानी कि इंसान जो मर्जी इरादा कर ले, अल्लाह अपने बंदे पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। जब इंसान के वो इरादे टूटते हैं ना, जो वो प्लान कर रहा होता है कि मैंने तो ये करना है, वैसे कर लूंगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक सब चीजें चल रही हैं, और जब वो टूटते हैं तो फिर पता चलता है मेरे से ऊपर भी कोई प्लानर बैठा है जो सारी के सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। यही हजरत अली ने फरमाया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना था, और अल्लाह अपने बंदे के ऊपर मुकम्मल इख्तियार रखता है। और ना सिर्फ इख्तियार रखता है बल्कि वयुरसिलु अलैकुम हफाजा, वो उस अपने बंदे की हिफाजत के लिए निगरानी करने वाले फरिश्ते भी भेजता है, इरसाल करता है, मुकर्रर करके भेजता है फरिश्तों को हर इंसान के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हदीस बताती है कि 300 फरिश्ते निगरान मुकर्रर कर रखे हैं अल्लाह ताला ने। कितने फरिश्ते? 300 निगरान फरिश्ते हर इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। दो तो ये है कि किरामन कातिबीन जो हमारा हर अमल लिख रहे हैं, दाएं और बाएं बैठे हुए। एक आंख की हिफाजत के लिए हदीस से पता चलता है 7 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला ने वो मुकर्रर किए हैं जो हमारे आमाल नामे लेकर पीर और जुमेरात को अल्लाह ताला के हजूर पहुंचते हैं। इसके अलावा अल्लाह सुब्हाना ताला आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। इसके अलावा सुबह शाम की दुआएं पढ़ने वालों के लिए जो है फरिश्तों की दुआएं होना आता है, और 70,000 फरिश्ते जो है वो उनके लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे होते हैं।
تو اور وہ کون سے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بھیجے ہیں؟ ملک الموت بھیجتا ہے پھر اللہ تعالیٰ، اور ملک الموت آتے ہیں تو وہ کیا روح اور جان کنی کا معاملہ ہوتا ہے، اور پورے کے پورے نیکوکار کے لیے علیحدہ اور بدکار کے لیے پورا کا پورا علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جب قبر میں جائے گا تو اس کے اوپر اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، اور جب وہ اٹھائے جائے گا قبر سے تو پھر سائق اور شہید اس کے ساتھی ہوں گے، اس کا نامہ لے کر حشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے رکھے جو انسان کے دوست ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے رہیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو وہ تمہارے لیے اوپر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسولنا، تو یہی ہمارے بھیجے ہوئے تمہیں فوت کر دیتے ہیں، یعنی اس کو فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ پھیرے جائیں گے، پلٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، سب کے سب حکم اللہ ہی کی طرف ہونے ہیں اور فیصلے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ گویا سب کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، موت کا جب وقت آئے گا تو یہی نگران فرشتے جو اللہ بھیجتا ہے، انہی نگران فرشتوں میں سے کچھ ملک الموت ہوں گے جو انسان کے پاس آئیں گے اور فہم لا یفرطون کا معاملہ کرتے ہوئے کوئی کمی نہیں کریں گے، اور توفتہ، یعنی اس کو فوت کر دیں گے۔ اور فوت کیسے کریں گے کہ نیکوکار کی جو جان ہے وہ کیسے نکلے گی؟ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولیں اور اس میں سے خوشبو نکل جائے، اور آسانی کے ساتھ، اور جو بدکار ہے اس کے ساتھ جب جان کنی کا معاملہ ہوگا تو کم لا یفرطون، کیسے کمی نہیں ہوگی کہ اس کی ایک ایک عضو سے مار مار کے اس کی جان نکالی جائے گی، اور اس کی روح اس کی اعضاء میں چمٹے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کی روح کو ایسے نکالیں گے کہ جیسے گیلی روئی کو خاردار جھاڑی کے اندر سے نکالا جاتا ہے، تو ایک ایک رواں سے جو ہے وہ اس کی روح نکالی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حق مولا کی طرف پھیرا جائے گا سب کو، اور اللہ جلد حساب لے لے گا، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لے لینا، بلکہ اللہ ہمیں بلا حساب ہی جنت میں داخل فرما دینا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان سے کہو کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں خشکی اور تری کے، یعنی سمندر کے اندھیروں میں سے یا خشکی کے اندھیروں میں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ، تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃً، اور تم خفیہ یعنی چپکے چپکے، یعنی مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو۔ کس سے کہتے ہو، کس سے مانگتے ہو؟ کون تمہیں ان اندھیروں سے، خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس بلا اور اس تکلیف سے، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ضرور ہم شکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان ایسے ہی کرتا ہے جب کسی مصیبت میں اندھیروں میں گرفتار ہوتا ہے۔ ظلمات البر والبحر کا کیا مطلب ہے کہ ہم لائٹ چلی جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ والے اندھیرے کی بات ہو رہی ہے؟ زندگی کے اندر، ہاں جی، جو آپ کی زندگی، آپ کی لائف کے اندر کوئی بھی مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں آئیں کہ آپ کو لگے کہ جیسے آپ کی زندگی اب اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہ ایسی پریشانی کے عالم ہو کہ آپ کو کوئی سجھائی نہ دے رہا ہو، ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی کا اندھیرا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے اندھیروں میں، ایسی مشکلات میں جب انسان پڑتا ہے تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے نا۔
اور وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. اللہ میری یہ مشکل ختم ہو جائے, میں پھر ہمیشہ نمازیں پڑھوں گی. اللہ میری یہ مشکل ٹل جائے, تو میرا میاں جو ہے اس کو جاب مل جائے, ہماری اوپر یہ رزق کے حالات کی تنگی, اللہ یہ جاب ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہمیشہ جو ہے وہ نیک کام کروں گی, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی. اللہ میں یہاں سے بچ جاؤں, میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی. اللہ مجھے یہ کام کر دے, میرے بیٹے کی اچھی جگہ شادی کر دے, میرے بیٹے کو جاب مل جائے, اللہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گی, یا ہمیشہ نیکی کا عمل کرتی رہوں گی, ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار کوئی نہ کوئی ڈیل کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں گے اگر تو اس مشکل سے ہمیں نکال لے. تو اللہ نے کہا ان سے پوچھو کون تمہیں نجات دیتا ہے. قل اللہ, کہو اللہ, یُنَجِّیکُم مِنْہا, وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات دیتا ہے, وَمِن كُلِّ كَرْبٍ, اور اللہ ہی تمہیں ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے, ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ, اور پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. پھر تم شکر کرنے کے بجائے کیا کرنے لگ جاتے ہو؟ شرک کرنے لگ جاتے ہو. گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گلا کیا ہے. شرک کا کیسے معاملہ آ گیا بھائی؟ ہم کہتے ہیں اللہ میری بیٹی, میری بہو یا میری بیٹی کا بہت ہی مشکل کیس ہے, یہ پھنس گیا ہے, اس کا بچہ اللہ آسانی سے ہو جائے, اللہ یہ تو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا, اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ جان کا خطرہ ہے, بچہ بچ جائے, اللہ بچہ بچ جائے, بچہ بچ گیا, ماں بچ گئی, تو میں نے تو جو ہے نا وہ دیگ چڑھانی ہے, میں نے فلاں کرنا ہے, میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گی. انسان نظریں مانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرتا ہے نا, کہ اللہ تو نے اس مشکل سے نجات دے دی. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس تکلیف سے نجات دلا دیتا ہے تو انسان فوراً کہتا ہے ہائے اللہ, ہائے شکر ہے وہ ڈاکٹر بڑی اچھی مل گئی, ڈاکٹر نے بچا لیا, ہم ٹائم پہ پہنچ گئے, ڈاکٹر بڑی اچھی تھی, اس نے ہمارا بڑا اچھی طرح سے سارا کا سارا کام کروا دیا, ہے نا. میری وہ گیس نہیں لگ رہی, میرا گیس کا میٹر کٹ گیا ہے, میری بجلی کا میٹر کٹ گیا ہے, اللہ کوئی ایسا مل جائے, اگر مل گیا تو میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اتنا صدقہ کر دیا کروں گی جمعے والے دن. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ گیس کا میٹر لگ جاتا ہے, وہ بندہ وہاں پہ مل جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے, اور پھر ہم آگے سے کہتے ہیں ہے شکر ہے فلاں بندہ وہاں پہ مل گیا, وہ تو میں گئی تو اس نے تو میرا فٹافٹ جھٹ پٹ کام کرا دیا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے جو کہ ہم سب ہی کرتے ہیں. ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ نے شاید اس کو وسیلہ بنایا, تو ہمیں یہ بولنا ہے, ہمیں یہ بولنا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فلاں شخص کو میرے لیے بھیج دیا وسیلہ بنا کے کہ میرا یہ کام ہو گیا. اللہ کو ہم بھول ہی جاتے ہیں, ہے نا. پھر ہم شرک کرنے لگ جاتے ہیں. ہم اللہ کی جگہ کس کو لے آتے ہیں؟ ڈاکٹر بڑی اچھی تھی, وہ بندہ بڑا مل گیا, ہمارا کام ہو گیا. یہ ہے شرک, جو اللہ نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو, تمہیں اس کرب سے اللہ ہر ہی کرب سے نجات بھی دے دیتا ہے. ثم انتم تشرکون, اور پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو. میری امی بڑی تھی, امی نے میرے لیے ایسا کیا, اور میری ماں نے سب کچھ کیا میرے لیے, یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. تو گویا اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے میرے لیے فلاں شخص کو وسیلہ بنا دیا, اگر اللہ یہ نہیں کرتا تو میرے لیے یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, اللہ کا نام ضرور لینا, نہیں تو ہم شرک کے معاملہ کر بیٹھیں گے. پھر وہ اللہ تعالیٰ جب اولادیں دیتا ہے تو پھر اس کا نام, اولادوں کا نام بھی پھر رکھ دیا جاتا ہے پیرا دتا. رکھتا ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ ان کے نام بھی ایسے ہی رکھ دیے جاتے ہیں, فیض الرسول اور پیرا دوایا, اور یہ سارے نام بھی جو ہیں یہ اسی شرک کی باتیں ہیں, اور انہی کا معاملات میں اس کے سارے رویے ہیں. اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قل, ان سے کہہ دیجئے, هو القادر, وہ اس بات پر قادر ہے, الا ان یبعث علیکم عذابا, یہ کہ وہ نازل کر دے تمہارے اوپر عذاب, من فوقکم, تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے, او یلبسکم شیعا, یا وہ تمہیں یلبسکم چھپا لے یا ڈھانپ لے گروہوں میں, وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور وہ چکھائے تم کو بعض کو تمہارے بعض سے, یعنی عذاب چکھائے بعض کا بعض سے عذاب چکھنے کا معاملہ کروا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھو کس طرح سے ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں
शायद कि वो समझ जाएं, शायद कि वो अल्लाह की तरफ अपना रुख फेर लें। गोया अल्लाह ने यहाँ अपने अजाब देने के 4 अंदाज और 4 तरीके बताए हैं कि अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो क्या करे, तुम्हारे ऊपर से कोई अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह तुम्हारे कदमों के नीचे से भी अजाब ला सकता है और तुम्हें गिरोहों में तकसीम कर दे और एक दूसरे से लड़वा कर एक दूसरे की ताकत का मजा चखवा दे। ये 4 अंदाज है अल्लाह के अजाब की शक्लों के जो यहाँ अल्लाह ने बताए हैं। अल्लाह ऊपर से अजाब लाने पर कादिर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कौमों को अजाब देने का तरीका पूछा कि ए अल्लाह, तू कौमों पर नाराज होने की तेरी क्या निशानी है, क्या तू नाराज होता है तो तू क्या करता है? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि जब उनकी फसलें पक रही होती हैं तो उनकी बारिशें रोक लेता हूँ, जब उनकी फसलें पक जाती हैं तो उनकी बारिशें भेज देता हूँ। तीसरा तरीका क्या है कि उनका माल बखीलों और खाइनों के हवाले कर देता हूँ, यानी अमीर लोग कौन होते हैं? बखील और खाइन। और चौथा तरीका अल्लाह का कौमों पर अजाब देने का ये अल्लाह ने फरमाया था कि मैं उन पर बदतरीन हुक्मरान मुसल्लत कर देता हूँ। ये अल्लाह का अजाब देने का तरीका है कि ऊपर वाला तबका जो हुक्मरानी तबका होता है वो बदतरीन हो जाता है, ठीक है, मालदार लोग बखील और खाइन हो जाते हैं। तो जो ऊपर के अजाब हैं उनमें हमारा ऊपर वाला तबका भी आता है, हुक्मरानी तबका या एलीट क्लास जो है वो बखील और खाइन और बदतरीन हो जाती है। इसके अलावा ऊपर के अजाब और कौन कौन से हैं जो हमें नजर आते हैं? बारिश से अजाब आता है, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, ज़ालाबारी का तूफान आता है, फिर तूफानी हवाएं, ये भी अल्लाह के अजाब की शक्ल है। और आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद करना, ये भी क्या है? ऊपर के अजाब की एक शक्ल है। फिर वो जो एक अजाब आ रहा है आजकल हमारे मुल्क के अंदर ड्रोन हमलों की शक्ल में, ये भी एक ऊपर के अजाब की तहत एक शक्ल है। तो अल्लाह ने ऊपर के अजाब बताए कि देखो मैं चाहता हूँ, मैं कादिर हूँ इस बात पर कि तुम्हारे ऊपर के अजाब नाजिल कर दूं। और हम देखें बहैसियत कौम हमारे ऊपर के अजाब आ रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहूँ तो तुम अजाब को कहाँ पर कर दूं? मिन ताहती अर्जुलिकुम, तुम्हारे कदमों के नीचे से। तो कदमों के नीचे से क्या क्या चीजें हैं? जमीन है ना, तो जमीन में जलजले आना, जमीन में झटके लगना, जमीन का धंस जाना, जमीन से आतिश फशां का फट जाना, जमीन में गर्म पानी के चश्मों का उबल जाना, फिर हमारे नीचे वाले तबके का अजाब, जो पिसा हुआ निचला तबका है हमारा, गरीबों का तबका, उनकी तरफ से हमें मुश्किलात का सामना, ये भी एक नीचे पैद कदमों के नीचे से अजाब की अल्लाह ताला की एक शक्ल है। जहालत, भूख, अफलास, गुर्बत, और उसकी वजह से वो हम पर सवार हैं और हमें लूट के खा रहे हैं। डाका, रहजनी, लूटमार, डकैती, ये सब कुछ क्या है? ये निचले तबके का अजाब है जो शक्ल है। फिर एक और, जैसे हुक्मरानी ऊपर से तबका था, इस तरह हमारी आने वाली हमारी नस्लें बिगड़ जाएंगी। ये निचले तबके के नीचे से अजाब है जो हमारे कदमों के नीचे से हमारे हाथों से फिसलती जा रही हैं हमारी नस्लें। हम उनको देख रहे हैं और हम उनको रोक नहीं पा रहे। सब के सब जो है वो इस लय में बहते चले जा रहे हैं। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फहाशी और यानी पता ही नहीं हमारे बच्चों को, वो एथियज्म का शिकार होते जा रहे हैं, वो फेमिनिज्म के नाम पर नारे और वो सारा कुछ आपके सामने ही है। ये सब क्या है? वो सब के सब बच्चों को लगा दिया ड्रग्स की तरफ, वो बच्चों को शराब नोशी की तरफ, वो बच्चों को जो है वो महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। वो दीनदार घरानों के बच्चे जो हैं वो भी इसी गलत रवि के शिकार होते जा रहे हैं। ये आने वाली नस्लों का अजाब अल्लाह चाहे, अल्लाह कहता है मैं इस पर कादिर हूं कि मैं तुम्हारे कदमों के नीचे से अजाब नाजिल कर दूं। और तीसरा, ये भी हमारे अंदर बहैसियत कौम हमारे अंदर नजर आ रहा है, बल्कि बहैसियत उम्मत में कहूंगी। तीसरी शक्ल अल्लाह ताला की क्या है? वयल बिसकुम शियान, और वो तुम्हें गिरोह में तकसीम कर दे, यानी गिरोहों में बांट दे। और हम देखते हैं पहले कंबाइंड फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा होता था और एक एक घर में 4-4 बेटे, बहुएं, उनके बच्चे सब रहते थे और मोहब्बत के साथ रहते थे और बहुत प्यार होता था। आज
अपने घर के अंदर जो है वो फितने, फसाद, लड़ाई, झगड़े, कोई किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई सास बहू अपनी सास के साथ रहना पसंद नहीं करती, दो भाई हैं तो उनके दिल फट जाते हैं, आपस में वो मिल नहीं सकते, ये गिरोहों में बांट देना, दिलों को फाड़ देना, ये अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है जो अल्लाह ने यहाँ पर बताया कि मैं इस पर कादिर हूं कि तुम्हें गिरोहों में बांट दूं। आज हम देखते हैं हर घर में ये फितने, फसाद और गिरोहों में बांटना और तकसीम हुए वे सब जो है वो नजर आते हैं। कोई किसी के साथ नहीं रहना पसंद करता, और ना सिर्फ फाड़ दूं बल्कि युज़ीक़ बाज़कुम बाज़ा बाज़, और तुम्हें एक दूसरे के जरिए से नीचा दिखाएं, यानी कि तुम एक दूसरे की ताकत का मजा चखावा दे। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे तो एक को ऊपर और एक को नीचे करके एक को पिसवा दे और एक को एलिवेट कर दे। ये अल्लाह के मामलात है, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की हदीस आती है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सब बादशाहों के दिल मेरे हाथ में हैं। जब मेरे बंदे मेरी अताअत करते हैं तो मैं उनके बादशाहों के लिए उनके दिल नरम कर देता हूँ, और जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं उनके दिल सख्त कर देता हूँ। इसलिए तुम अपने हुक्मरानों को बुरा भला कहने में वक्त जाया ना करो, बल्कि अपनी इस्लाह में लग जाओ, मैं उनकी इस्लाह भी कर दूंगा। सही? दूसरों को बुरा भला कहने के बजाय क्या करना है? हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने अंदर से शिर्क को निकालना है, अपने अंदर से शिर्क की बेजारी जाहिर करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी खुद भी इस्लाह फरमा देंगे। तो अल्लाह ने कहा मैं चाहूं तो ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये मैं क्यों कर, देखो मैं किस तरह से फेर फेर कर आयात बयान कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह की तरफ रुख लेकर आ जाओ, ताकि शिर्क से बेजार होकर अपना रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ करके लअल्लहुम यफ़क़हून का मामला कर लो। ये बातें सोचो और समझो और अपने आमाल को दुरुस्त कर लो। वकज़्ज़बा बिही कौमुका वहुवल हक़्क़ु, तुम्हारी कौम उसका इनकार कर रही है हालांकि वो हकीकत है। कुल लस्तु अलैकुम बेवकील, इनसे कह दो मैं तुम्हारे ऊपर दारोगा हवालादार बनाकर नहीं भेजा गया। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कह दिया जो मर्जी तुम्हारी कौम करती रहे, हालांकि ये सब बातें जो अल्लाह ने बता दी ये हकीकत है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारे बताने पर सब के सब सुधर जाएं, सब के सब अपने अमाल की इस्लाह कर लें। तो उनसे कह दो कि ये हकीकत है जो मैंने तुम्हें बता दी है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर मैं हवालादार बनाकर नहीं भेजा गया। काम करोगे, अमाल की इस्लाह करोगे तो तुम्हारे ऊपर, नहीं करोगे तो उसका बवाल भी तुम्ही को सहना पड़ेगा। लिकुल्ली नबाइम मुस्तकर वसौफ तालमून, हर खबर में का ज़हूर में आने का वक्त मुकर्रर है, हर खबर का मुस्तकर है, यानी एक न एक वक्त में वो खबर पूरी हो जाएगी और अनकरीब तुम जान लोगे, तुम्हें अंजाम खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना, और जबकि तुम देखोगे उन लोगों को यख़ूज़ूना, वो बहस कर रहे होंगे, वो फजूल बातों में अपना टाइम जाया कर रहे होंगे और नुक्ताचीनियां कर रहे होंगे। किसके बारे में? आयातिना, हमारी आयात के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोग होंगे जो तुम देखोगे कि वो क्या करेंगे, हमारी आयात के बारे में चहमगोइयां करेंगे, नुक्ताचीनियां करेंगे, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता, शिर्क इसको नहीं कहते, फलां चीज तो जायज है, फलां चीज तो होनी चाहिए, ये इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। यानी मुख्तलिफ बातों में दीन के अहकामात के अंदर नुक्ताचीनियां कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या करे? फिर हम उनसे बहस करें, हम उनसे लड़ें, हम उनसे लड़ाई झगड़ा करें, हम उन्हें कायल करने की कोशिश करें? अल्लाह ने कहा फ़अरिज़ अन्हुम, उनसे एराज कर लो, उनसे मुंह मोड़ लो, उनके साथ बहस मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। कब तक मुंह मोड़े रखो? हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरिही, यहाँ तक के वो किसी दूसरी बात में मशगूल ना हो जाएं। यानी कि अगर तुम देख रहे हो, पीछे भी हमने पढ़ा था ना कि जब तुम देखो कि कुरान की आयत के खिलाफ कुफर बका जा रहा है तो उनके पास ना बैठो जब तक कि वो किसी दूसरी बात में ना लग जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो अल्लाह की आयत के बारे में नुक्ताचीनियां करेंगे, चहमगोइयां करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए? आरिज अनहुम, उनसे एराज कर लो, मुंह मोड़ो, उनसे थोड़ा देर के लिए कट ऑफ हो जाओ, लेकिन टोटल कट ऑफ नहीं होना। उस वक्त तक कट ऑफ होना है जब तक कि वो किसी दूसरे काम में ना लग जाए, दूसरे काम में मशगूल ना हो जाए। अच्छा, ना बैठना तो चले, अल्लाह ताला ने ना करना तो अल्लाह ताला ने कहा था कि ये काम मत करना, लेकिन ना बैठने का या ना बहस करने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है, या उनके साथ एराज करने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है? एक तो बात ये है कि अगर हम वो एक काम कर रहे हो गलत, जैसे कि मिसाल के तौर पर लोग दरबारों पर जाते हैं, लोग जो है वो मिलादे मनाते हैं, न्याज़ें देते हैं, ठीक है, शिर्क के मामला आते हैं ना, जो हम अभी शिर्क ही पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे लोग जो शिर्क के मामलात कर रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा उनसे एराज कर लो। एराज इसलिए कर लो कि अव्वल तो वो तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते, पीछे कह दिया था तुमने उनको बताना है, ये हक है, तुम उन पे दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए। हाँ, जब तुम देखोगे फिर भी बताने के बावजूद ये कर रहे हैं और करते रह रहे हैं, तो तुम क्या करना? उनसे एराज करना, क्योंकि अगर तुम वही उनके साथ जाओगे, उनके साथ शामिल होगे, तो वो एक हुज्जत बन जाएगी कि ये तो कुरान पढ़ती है, ये तो कुरान को डिटेल से समझी हुई है, अगर ये भी यहाँ पर आ रही है और ये भी यहाँ पर ये काम कर रही है और खुशी से कर रही है और हमारे साथ पूरी तरह शामिल है, तो फिर गोया दीन का एक गलत इमेज आएगा। दूसरी बात ये, एराज इसलिए करो, बहस इसलिए ना करो कि कुरान में आता है कि जब तुम उनके माबूदों को कुछ कहोगी तो बदले में वो तुम्हारे माबूद यानी अल्लाह को गाली देंगे। हाँ, तो इसलिए अगर हम उनको कुछ ऐसे मौके पर कहेंगे तो क्या होगा? वो बदले में अल्लाह सुब्हाना ताला या हमारे दीन की असल बातों के खिलाफ हो जाएंगे, जो कि कुफ्र का मामला हो जाएगा। लिहाजा उनसे एराज करो जब तक कि वो दूसरे कामों में शामिल ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने तरीका हमें बता दिया, कुरान भी सिखाता है कि ऐसी जगहों पर जहां तुम देखो कि दीन की बातों के खिलाफ मामलात किए जा रहे हैं, गोया वो लग़वियात है ना, लग़्व बातें हैं, दीन ना दुनिया में फायदा है ना आखिरत में उसका कोई फायदा है, बल्कि उल्टा जाया हो रहा है टाइम। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने तरीका बताया है, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, जब वो लग़वियात से गुजरते हैं तो इज्जत से गुजर जाते हैं, बहस मुबाहिसे में नहीं पड़ते, खामखा जदाल और इस तरह का मामला नहीं करते, इज्जत से गुजर जाते हैं। हाँ, वहां से उनको जब फारिग हो जाएंगे, जब उनको वहां से वो फारिग होंगे तो फिर क्या अल्लाह ने फरमाया, व इम्मा युनसियन्नका शैतानु, और अगर शैतान ने उनको भुलावे में डाल दिया है, फला तक़उद बाद ज़िक्रा, फिर वहां पर उनकी नसीहत करने के बाद वहां पर बैठना मत, माल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम के साथ। यानी अगर वो फिर भी अपना वो काम करते रहेंगे, गलत चीज पर जारी हैं, तो इसका मतलब है कि शैतान ने उनको भुलावे में डाला हुआ है। ठीक है, शैतान ने उनके अमाल उनको मुज़य्यन करके दिखाए हुए हैं, तुम वहां पर मत बैठना, नहीं तुम भी उन कौम जालिम कौम जैसे हो जाओगे। समझ आ गई बात आपको? वमा अलल लज़ीना यत्तक़ूना मिन हिसाबिहिम, और नहीं है ऊपर उन लोगों के जो अल्लाह से डर डर के काम करते हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में, मिन शैइन, कुछ भी, यानी कि उनके हिसाब या वो लोग जो भी कर रहे हैं ना, उनके कामों के हिसाब किताब में जो तकवा के साथ चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई पूछ नहीं है। ठीक है, वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून, लेकिन नसीहत जरूर करते रहना, शायद कि वो तकवा इख्तियार कर लें, शायद कि वो बच जाए। तो नसीहत फिर उन्हें कब करनी है? नसीहत उन्हें कब करनी है? जब वो रिसेप्टिव होंगे, जब वो सुनना चाहेंगे, जब वो अमल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है शैतान ने उन्हें भुलावे में डाला हुआ है। तुम वहां पर मत बैठना, क्योंकि तुम्हें दीन का सही कॉन्सेप्ट और तरीका अकीदा पता है, तुमने ऐसे शिर्क या मामलात नहीं करने, लेकिन वो जो अब अमल कर रहे हैं उनका हिसाब किताब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। लेकिन कट ऑफ नहीं करना, टोटली उनको अबंडन नहीं करना, उनको खत्म, उनसे ताल्लुक नहीं करना, जिक्र और नसीहत उनको करते रहना। शायद तुम्हारी नसीहत से उनको आज नहीं तो कल
परहेजगारी मिल ही जाए कि हाँ देखो हर दफा ये मुझे बड़े प्यार से बताती है, बड़े अच्छी तरीके से बताती है। तो आप लोगों को आपके उस सवाल का जवाब मिला है कि ऐसी जगहों पर जाएं कि ना जाएं? आपके रिश्तेदार आपको बुलाते हैं तो हम जाएं कि ना जाएं? उनसे टोटल कट ऑफ कर दें, वो हमें इस तरह बुलाते हैं, अब हम जाएं कि ना जाएं? जाएं, जरूर जाएं, लेकिन जब वो ये गलत अमाल करें तो उठ के वहां से आ जाएं और आराम से कह दे। जब वो बाद में आपसे पूछे तुम आई थी तो फिर चली क्यों गई, तो ये ऐसे क्या हो गया, तो बता दे कि अल्लाह के नबी ने तो ये काम नहीं किया था, अल्लाह के नबी ने तो इसके बारे में हमें ऐसे हुक्म दिया है, बस इतना बता दे, ठीक है। और जब भी ऐसी बात हो आराम से बात करनी है, जाना भी है, छोड़ना भी नहीं है, ताल्लुक भी रखना है, किस हद तक रखना है। अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें सब कुछ बता दिया है, शायद कि वो यत्तकून बच जाएं, परहेजगारी इख्तियार कर ले। गोया ना उम्मीद नहीं होना चाहिए मोमिन को, अपने हर अमल के साथ अल्लाह से अच्छी उम्मीद वाबस्ता रखनी चाहिए। वज़रिल लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवन, और तुम छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है। ये खेल तमाशा बनाने का रवैया नहीं तो और क्या है कि चंद दिनों में इख्तियार कर लिया और चंद दिनों में छोड़ दिया। जब दिल करा मुश्किलात आई हैं तो बस लेके वजीफे और जो है वो खत्म करे जा रहे हैं और नजरे न्याज़े चढ़ाए जा रहे हैं, और जब वो खत्म हुआ, आपका पीरियड ओवर हुआ, मुश्किलात टली, तो बस आप भूल गए और अयाशी में इतना मगन है कि आपको पता ही नहीं कि अल्लाह और उसके नबी ने क्या फरमाया था, है कि नहीं। वो दीन को खेल तमाशा बनाने का रवैया ये है, जब दिल किया दीन को पकड़ लिया, जब दिल किया दीन को छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि बच्चा खिलौने से कैसे खेलता है, जब दिल करता है, दिल बहलाने के लिए थोड़ी देर के लिए उस खिलौने को इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो क्या करता है, उससे बेजार होकर छोड़ देता है, फिर दूसरा खिलौना उठा लेता है, फिर उससे बेजार होकर छोड़ता है, फिर तीसरा खिलौना उठाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है, चंद महीनों में पकड़ लेते हैं, रबीउल अव्वल में पकड़ लेते हैं और रमजान उल मुबारक में पकड़ लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, और उसके बाद सारी उम्र उनको पता ही कोई नहीं कि दीन का क्या मामला है। अल्लाह ने फरमाया ये दीन को जो लोग खेल तमाशा बनाते हैं, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, उनको तो दुनिया की जिंदगी फरेब में मुब्तला किए हुए हैं, धोखे में डाले हुए हैं। वो तो दुनिया हासिल करने के लिए भी दीन को इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो दीन को भी दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाला हुआ है। वज़क्किर बिही, हाँ तुमने नहीं छोड़ना, इस कुरान के साथ उनको नसीहत करते रहो। उन्होंने तो दीन को खेल तमाशा बना लिया है, दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाला हुआ है, लेकिन तुम ज़क्किर बिही का मामला करते हुए इस कुरान के साथ उनको नसीहत करते रहो। क्यों, अंतुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, ये ना हो जाए कि कोई जान अपने किए करतूतों के वबाल में ही गिरफ्तार हो जाए। ये ना हो, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे प्यारे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये ना हो कि वो अपने इस वबाल में ही गिरफ्तार हो जाए, अपने करतूतों के वबाल में जो उन्होंने आगे भेजा है। लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि वलियुन वला शफी, और फिर उनके लिए कोई ना शफात करने वाला होगा और ना ही कोई उनका दोस्त होगा। व इन तादिल कुल्ला अदलिन ला यूखज़ मिन्हा, और अगर वो बदले में कोई चीज भी फिदिये में देना चाहेंगे, उस दिन कयामत के दिन उनको कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी। उलाइकल लज़ीना, ये वो लोग हैं, उबसिलू बिमा कसबू, ये अपने ही आमाल के चक्कर में गिरफ्तार हो गए, ये अपने ही अमाल के वबाल में गिरफ्तार हो गए, अपने ही कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। लहुम शराबुम मिन हमीम, उनके लिए शराब होगी खौलते हुए पानी का होगी, और अज़ाबुल अलीम, और दर्दनाक अजाब होगा, बिमा कानू यकफुरून, उस कुफ्र के बारे में जो वो करते रहे थे। तो बताया जा रहा है शिर्क करने वाले जो अगर आपके साथ हैं और इन आमाल में गिरफ्तार हैं, तो आपका रवैया उनके साथ क्या होना चाहिए। आपके अपने प्यारे हैं, मोमिनों को क्लियर कट एटीट्यूड और रवैया बताया गया है कि जहां तक हो कुरान का पैगाम पहुंचाते रहें। ये ना हो कि आपके अपने प्यारे इर्द गिर्द के लोग भी जो हैं अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार हो जाएं, और फिर वहां पे जब अल्लाह के पास जाएंगे तो ना कोई मददगार होगा, ना कोई शिफात करने वाला होगा। जो भी दुनिया की चीज वो बदले में देना चाहेंगे फिदिये के तौर पर कि वो उस अजाब से छुट जाएं, उस दिन वो कबूल भी नहीं की जाएगी, और बदले में उनको क्या मिलेगा, खौलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा और दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। क्योंकि वो जो कुफ्र
तकबर दुनिया में करते रहे थे, ये उसी का बदला होगा जो उनको वहां पर दिया जा रहा है। कुल अनदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यज़ुर्रुना, उनसे कहिए क्या तुम अल्लाह के अलावा उनको पुकारते हो जो ना नफा दे सकते हैं और ना ही वो जरर दे सकते हैं। वनुरद्दु अला अक़ाबिना, और हमें और फेर दिया गया है ऊपर हमारी, क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं अपनी एड़ियों के ऊपर। बादा इज हदान अल्लाहु, उस हिदायत के बाद जो अल्लाह ने हमें दे चुका है। कल लजीज तहवत शयातीनु फिल अर्दी हैराना, तो फिर हमारा तो हाल उस शख्स के साथ जैसा हो जाएगा कि जिसको शैतान ने सहरा में भटका दिया हो और वो सरगर्दा फिर रहा हो। अल्लाहु अस्हाबुई, उसके कुछ साथी हों, यदऊनहु, वो उसको पुकार रहे हों कि इलल हुदा तीना, कि इधर है हिदायत, इधर आजा, सीधी राह मौजूद है। कुल, इनसे कह दो, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की ही हिदायत है, रहनुमाई सिर्फ अल्लाह की हिदायत है, रहनुमाई से होती है। व उमिरना, और मुझे हुक्म दिया गया है, लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, कि मैं फर्मा बरदार हो जाऊं अपने रब्बुल आलमीन के लिए। गोया बता दिया गया है कि ए मोहम्मद, इनसे पूछो क्या हम अल्लाह को छोड़कर अब उनको पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं ना नुकसान, जबकि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है। तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स कैसा कर लें जिसे शैतानों ने सहरा में भटका दिया और वो हैरान और सरगर्दा फिर रहा हो, हालांकि उसके साथी उसे पुकार रहे हों कि इधर आ, ये सीधी राह मौजूद है। कहो, हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह ही की रहनुमाई है और उसकी तरफ से हमें यह हुक्म मिला है कि मालिके कायनात के आगे सरे तस्लीम खम कर दूं, और क्या करूं कि सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदारी में आ जाऊं। व अन अकीमुस्सलाता वत्तकूहु, और ये कि मैं नमाज को कायम करूं और उससे परहेजगारी इख्तियार करते हुए नाफरमानी से बचूं। वह हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुम सब को समेटा जाना है। तो गोया इंसान को बता दिया गया कि क्या करना है, सिर्फ अल्लाह की हिदायत में आना है, अल्लाह की के आगे सरे अतात झुकाना है, नमाजों को कायम करना है और तक़वा और परहेजगारी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ सब ने सिमट के जाना है, और जो अल्लाह की तरफ सिमट के जाना है तो फिर इस अल्लाह ही के सामने खड़े होने के लिए वो मोमिन अकीमुस्सलाता करके अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अल्लाह के सामने खड़े होने की प्रैक्टिस करता है और सारी जिंदगी तकवा के साथ गुजारता है। अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहता, सिर्फ अल्लाह ही को राजी करना चाहता है। गोया ये तरीका है जो हमें सिखाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ हमें वहदानियत के ऊपर, अल्लाह की तौहीद के ऊपर रासिख होकर अपनी जिंदगी को गुजारना है। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दि बिल हक़, और वो ज़ात है कि जिसने बनाया आसमानों को और ज़मीन को हक के साथ। व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून, और उस दिन वो कहेगा हो जा और वो हो जाएगा। क़ौलुहुल हक़, बात उसकी सच है। वलहुल मुल्क, और वास्ते उसी के बादशाहत है। यौम युनफ़क़ु फ़िस्सूरी, उस दिन सूर में फूंक मार दी जाएगी। आलिमुल ग़ैबि व शहादती, और वो गैब और जाहिर सब को जानने वाला है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला, खबर रखने वाला है। अब आगे इंशाअल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा आएगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब शिर्क की नफी की थी और इस शिर्क से बेजारी जाहिर करके तौहीद के अकीदे पर रासिख हुए थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको क्या क्या अता फरमाया था। इंशाअल्लाह इस चीज को हम कल पढ़ेंगे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस रवैये को जानेंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक शिर्क से भरे हुए माशरे के अंदर अल्लाह की उन सिफात के जरिए से उसको पहचाना कि रब हय्यु क़य्यूम है, उस रब को फना नहीं है, रब कायम रहने वाला है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। और एक शिर्क से भरे हुए माशरे के अंदर जब एक रासिखुल अकीदा शख्स तौहीद पर जम जाता है, शिर्क से बेजारी जाहिर करता है, तो फिर अल्लाह ताला ने उनका जिक्र खैर रहती दुनिया तक जारी भी किया और मुझे और आपको उस रवैये को अपनाने का तरीका और अंदाज और सलीका भी सिखाया। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझा दे और इन पर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन।